تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا اور فرمان ہے تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا۔ بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ باریک بھی باخبر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈریں۔ اللہ کا فرمان ہے اور جان لیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دار بقا کے لیے عمل کریں اور اسے دار فنا پر ترجیح دیں۔ یہ فنا ہونے والی دنیا آپ کو دھوکہ میں نہ رکھے اور باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کرے۔ مسلمانوں، قیامت کے عظیم مناظر اور ان غیبی امور میں سے جو شرعی نصوص میں وارد ہوئے ہیں ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک توڑنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے ضرور لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا پھر جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تند و تیز آگ ہے۔ یہ نصوص دلالت کرتی ہیں کہ ترازو باریک ہے، کم و بیشی نہیں کرتی ہے، اسی کے تول کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے۔ چنانچہ کچھ کامران نجات یافتہ آسائش والی جنتوں میں ہوں گے، اور کچھ گھاٹا اٹھانے ہلاک ہونے والے جہنم والوں میں ہوں گے۔ بھائیو، جس ترازو کو قیامت کے دن نصب کیا جائے گا وہ حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہوں گے، اور وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ شرعی نصوص اس بات پر دال ہیں کہ جو چیز اس سے تولی جائے گی وہ بندوں کے اعمال، اسی طرح خود بندے اور ان کے اعمال کے صحیفے ہیں۔ اعمال کے تولے جانے کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب، زبان پر ہلکے اور ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بندے خود قیامت کے دن تولے جائیں گے اور اپنے ایمان کی بقدر یا تو بھاری ہوں گے یا ہلکی۔ اس کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن بھاری بھرکم موٹے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل میرے بھائیوں، کمزور ساخت مضبوط ایمان والے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کا وزن پہاڑوں پر بھاری ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دو پنڈلیاں پتلی تھیں تو ہوا انہیں گرانے لگی، لوگ ان پر ہنس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ان کی دو پتلی پنڈلیوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً وہ دونوں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، اور بندوں کے اعمال کے صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ اس کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، ہر دفتر تا حد نگاہ ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل پوچھے گا کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنا وزن دیکھو۔ وہ کہے گا اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ
ज्यादती ना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो तमाम दफ्तर एक परड़े में रख दिए जाएंगे और वो पर्चा दूसरे परड़े में, फिर वो सारे दफ्तर हल्के पड़ जाएंगे और ये पर्चा भारी होगा। और सच्ची बात यह है कि अल्लाह के नाम के साथ जब कोई चीज तोली जाएगी तो वो चीज उससे भारी साबित नहीं हो सकती। अल्लाह के बंदो, जब हम इस तराजू के आदिम हकाइक से वाकिफ हो गए हैं तो क्या हम अपने नफ्सों के साथ कुछ लम्हे के लिए ना रुके कि हम उन अमाल का जायजा लें जो हमारी तराजुओं में तोले जाएंगे। क्या हमें यकीन है कि हमारा खैर व शर और हमारे नेक और बुरे अमाल सब के सब बारीक आदिम तराजू में रखे जाएंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, तुम अपने आप का मुहासबा करो कब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, और अपने आप को तोलो कब्ल इसके कि तुम्हें तोला जाए। बेशक कल तुम्हारे लिए हिसाब में ज्यादा हल्का है कि आज तुम अपने आप का मुहासबा करो और सबसे बड़ी पेशी के लिए अपने आप को संवार लो। उस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पोशीदा न रहेगा। अबुल अहवस रहमहुल्लाह कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि किस चीज से डरा जाए? जब किसी बंदे का पलड़ा भारी होगा तो उसका नाम उस मजमे में पुकारा जाएगा जिसमें अगले और पिछले लोग इकट्ठा होंगे। सुनो, फला का बेटा फला ऐसी सआदत से शाद काम हुआ है कि उसके बाद वो कभी भी बदबख्त नहीं होगा। और जब उसका पलड़ा हल्का होगा तो मखलूकात के सामने उसका नाम पुकारा जाएगा, सुनो, फला का बेटा फला शख्स ऐसा बदबख्त हुआ है कि उसके बाद उसे कभी भी सआदत हासिल नहीं होगी। भाइयों, आदमी अपने ईमान, सालिहियत, तक़वा, अपने अमाल और दिल में रासिख यकीन की बदौलत एक अज़ीम और बावकार मकाम और मर्तबे तक पहुँच सकता है। यहाँ तक कि वो एक उम्मत के बराबर आदमी बन जाता है और उसका वजन एक उम्मत के वजन पर भारी पड़ता है। बेशक उम्मत मुस्लिमा का अपना वजन, अपनी कदर और कीमत और अपना मकाम है, और उसके अज़ीम सपूतों में से कुछ ऐसे हैं जिनका वजन एक उम्मत पर भारी है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर अबू बकर का ईमान और लोगों का ईमान तोला जाए तो अबू बकर का ईमान भारी होगा। बेशक वो एक उम्मत के बराबर इंसान थे, मुश्किलात के वक्त मर्दों के मकाम पर खड़े रहे। अल्लाह ने उनके जरिए दीन को गालिब किया, उसकी मदद की और उसे रासिख किया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा में खड़े होकर खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने फरमाया, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो मोहम्मद मर चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत क्या करता था तो अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। यहाँ तक कि उम्मत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से, शिद्दत गम और मुसीबत से दो चार होने के बाद अपनी अक्ल और शऊर की तरफ लौट आई। सो अल्लाह अबू बकर से राजी हो और उन्हें राजी करे। इस तरह इस्लाम बंदे को मीज़ान हक पर तोलता है, उसके उस खालिद जौहर के बामुजिब जो उसके उस अकीदा, उसूल, अक़दार और अखलाक की बुलंदी की वजह से बुलंद होता है। इंसान की आज़ादी अपने रब के लिए उसकी कमाल बंदगी में है, और दूसरों पर उसकी फजीलत की बुनियाद यकीनन तक़वा, ईमान और नेक अमल है। अल्लाह का फरमान है, यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको उनके ईमान के सबब उनके मकसद तक पहुँचा देगा, नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। ऐ अल्लाह, तू नेकियों से हमारे पर्दे को भारी कर और हमें भलाइयों में जल्दी करने वालों में से बना दे। मैं अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है और वो काफी है। दुरूद व सलाम नाजिल हो नबी मुस्तफ़ा पर, उनके आल व असहाब पर और उनके तरीके पर चलने वालों और उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, हम में से हर एक को चाहिए कि उस बात का हरीस बने कि क़यामत के दिन उसकी तराजू भारी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते तो ये दुआ करते, अल्लाह के नाम से मैंने अपना पहलू रख दिया, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे शैतान को रुसवा कर दे, मेरे नफ्स को आग से आजाद कर दे और मुझे आला व अफदल मजलिस वालों में बना दे। ये दुआ बाद उलमा के कौल के मुताबिक उन अज़ीम तरीन दुआओं में से है जो दुनिया और आखिरत की भलाई समोए हुई है। इसलिए जब जब सोने का इरादा किया जाए इसकी जरूर पाबंदी किया जाए।
इसी तरह बंदे को चाहिए कि वो उन अमाल का हरीस बने जिनसे उसकी तराजू वजनी हो और उसका पलड़ा भारी हो। उन अमाल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में वारिद ये अमल है, क़यामत के दिन मोमिन की तराजू में हुस्न अखलाक से ज्यादा कोई भी चीज भारी नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है, दो कलिमे ऐसे हैं जो रहमान के नजदीक महबूब, जबान पर हल्के और मीजान में भारी हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। ये हदीसें दिलालत करती हैं कि कुछ नेक अमाल और ताअतें हैं जो क़यामत के दिन बंदे की तराजू को भारी करेंगी। उन अमाल में सबसे अज़ीम कलिमे तौहीद, शहादा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह है, जैसा कि पर्चा वाली मशहूर हदीस में आया है। भाइयों, आप अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें, उसकी रजामंदी के मुताबिक अमल करें और भलाई करें, उसके नताइज पाएंगे। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, नमाज एक पैमाना है, जो पूरा पूरा नापेगा उसे पूरा पूरा दिया जाएगा, और जो कमी करेगा तो तुम्हें मालूम ही है कि अल्लाह ताला ने नाप तोल में कमी करने वालों के बारे में क्या फरमाया है। मुसलमानों, मीजान पर ईमान के मुतअद्दिद समरात हैं, उनमें से है लोगों पर हुज्जत कायम करना, अल्लाह ताला के अदल इंसाफ को जाहिर करना, और एक ही अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। उन समरात में से कामयाब होने वालों की आंखों को जन्नत में दाखिल होने से पहले फौरी खुशखबरियों के दीदार के वक्त ठंडक पहुंचना है। इसी तरह उन समरात में से दुनिया में मजलूम को पहुंचने वाले गम और तकलीफ को हल्का करना है कि अल्लाह क़यामत के दिन उसके लिए उस शख्स से बदला लेगा जिसने उस पर जुल्म किया है, उससे उसके दिल को इत्मीनान, खुशी और ज़हनी सुकून हासिल होगा। और उन समरात में से बंदे के अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहना है, क्योंकि उसे मालूम है कि क़यामत के दिन उसे हिसाब और बदले के लिए रोका जाएगा। ये चीज उसे मखलूक़ात के रब से डरने, भलाइयों में जल्दी करने, गुनाहों और तन्हाइयों की नाफरमानी को छोड़ने पर आमादा करेगी। सुने अल्लाह के बंदो, आप दुरूद व सलाम पढ़े अल्लाह के सबसे बेहतर और चुनिंदा मखलूक पर, जैसा कि आपको आपके रब ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद नाज़िल फरमा मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, उनकी बीवी उम्महातुल मुमिनीन पर और तमाम सहाबा पर। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा और कुफ्र और काफिरों को रुसवा कर। ऐ अल्लाह, उसकी मदद कर जो तेरे दीन, तेरी किताब और तेरे नबी की सुन्नत की मदद करे। ऐ अल्लाह, हमारे कमजोर भाइयों, तेरी राह में जिहाद करने वालों, सरहदों पर तैनात सिपाहियों और हुदूद के मुहाफिजों की मदद कर। ऐ अल्लाह, तू उनका मुईन, मददगार और हामी और नासिर हो जा। ऐ अल्लाह, तू दीन के दुश्मनों को पकड़, वो यकीनन तुझे आजिज नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, तू उनकी जमायत को बिखेर दे और उनके शिराजा को मुंतशिर कर दे। ऐ अल्लाह, इस मुल्क और मुसलमानों के बाकी मुल्कों को अमन, इत्मीनान, खुशहाली और कुशादगी का गहवारा बना। ऐ अल्लाह, हमें वतनों और घरों में अमन से नवाज और सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह कर। ऐ अल्लाह, हमारे सरबराह को उन अक़वाल और अफ़आल की तौफ़ीक़ दे जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो। ऐ अल्लाह, उन्हें और उनके वलीअहद को अपनी हिदायत, अपनी खुशनुदी के लिए काम करने की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे भले काम करने और बुरे काम छोड़ने का सवाल करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।